بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہے، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں ان قریب بدلہ دیا جائے گا۔ فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گویا تم اسی کا اثبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہے جو اس کی حسین و جمیل صفات کا فتح دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ ہیں، جس نے ان سب کو یاد رکھا وہ جنت میں داخل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ ہیں، یعنی 100 سے ایک کم، جس نے انہیں یاد رکھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ کریم کے مکمل نام، ان کے معنی، مطلب اور ان کے وظائف کے ساتھ آپ کے ساتھ تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے جہاں تک ہو سکے سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ یا اللہ، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی۔ جو لا علاج مرض ہو اور اس کے مرض سے اتباع عاجز آ گئے ہوں، وہ بکثرت یا اللہ کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے، اس کو شفا نصیب ہوگی، بشرط یہ کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک و صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل ہو۔ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے والا صاحب باطن و صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ 66 بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلانے سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے، خواہ آسیب کا اثر کیوں نہ ہو۔ آسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر اللہ اس برتن کی گنجائش کے مقدر لکھ کر اس کا پانی آسیب زدہ پر چھڑکے تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا محبت الہی کی وجہ سے ذکر کرے گا اور شک نہیں کرے گا وہ صاحب یقین میں سے ہوگا۔ جو ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہوا پڑھے گا اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یا رحمان، بے حد رحم کرنے والا جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص الرحمن الرحیم کو لکھ کر اور دھو کر وہ پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈال دے تو درخت کے پھل میں برکت ہوگی۔ اسی طرح طالب و مطلوب کا نام ماں والدہ کے لکھ کر باندھے تو مطلوب اس کی محبت میں سرگردہ ہو جائے، اور اگر کسی کو گھول کر پلائے تو اس کے دل میں طالب کی محبت ہو، بشرط یہ کہ محبت جائز ہو۔ اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اسے لکھ کر اور دھو کر پلانے سے گرم بخار سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ جو کوئی اس اسم کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائے گا۔ جو کوئی 41 دن تک 41 بار یا رحمان الدنیا والآخرۃ و یا رحیمہما پڑھے گا اس کی ضرورت و حاجت آسانی سے پوری ہوگی۔ جو کسی جابر حکمران کے پاس جاتے وقت یا رحمان یا رحیم پڑھتا جائے اللہ تعالیٰ اسے ظالم کی شر سے بچا لیتے ہیں اور خیر عطا فرماتے ہیں۔ یا رحیم، بڑا مہربان جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے گا اس کی قلب کی غفلت اور نسیان دفع ہو جائے گا اور تمام دنیاوی آفتوں اور عملی مکروہ سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو مشک و زعفران سے لکھ کر کسی محفوظ جگہ بدخلق آدمی کے گھر میں دفن کر دیا جائے تو اس میں حیا، ترحم اور مسکنت پیدا ہو جائے گی۔
जो हर रोज 100 बार पढ़ने का मामूल बनाए उसे अल्लाह ताला की रहमत नसीब होती है और लोगों के कुलूब उसके लिए नर्म हो जाते हैं। जो इसका कसरत से विर्द करता है वो मुस्तजाबुत दावात बन जाता है और जमाने की मसाइब से महफूज रहता है। जो कोई हर रोज ये इस्म 500 बार पढ़ेगा दौलत पाएगा और अल्लाह ताला की मखलूक उस पर मेहरबान और शफीक होगी। जो इसे सुबह की नमाज के बाद 555 बार पढ़ता रहे वो हर हाजत से गनी रहेगा। जो या रहमान दुनिया वो या रहीमहुमा 41 रोज तक पढ़ेगा उसकी हाजत पूरी होगी। जो शख्स इसे रोजाना 100 बार पढ़े उसके दिल की कसावत दूर हो जाती है। जिसको किसी नागवार काम का अंदेशा हो वो अर रहमान और रहीम को कसरत से पढ़े इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। अगर इसे लिखकर पानी से धोकर किसी दरख्त की जड़ में डाला जाए तो फल में बरकत होती है। या मलिक हकीकी बादशाह। जो शख्स रोजाना सुबह की नमाज के बाद या मलिक को कसरत से पढ़ा करेगा अल्लाह उसे गनी फरमा देंगे। और जो ज़वाल के वक्त 120 बार पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको सफाए कल्ब और गनाए ज़ाहिर व बातिन से सरफराज फरमाएंगे। जो शख्स इस इस्म को पढ़ता है उसका नफ्स इसकी इताअत करता है और उसे इज्जत और हुर्मत हासिल होती है। जो सूरज निकलने के वक्त 3000 बार ये इस्म पाक पढ़ेगा वो जो मुराद मांगेगा हासिल हो जाएगी। मालिक व मुल्क वाला आदमी अगर ये इस्म अल कुद्दूसों के साथ मिलाकर पढ़ेगा तो उसका मालो मुल्क कायम रहेगा। जो इस इस्म को फजर की नमाज के बाद 120 बार पढ़ने का मामूल बनाए अल्लाह ताला उसे अपनी इनायत के जरिए गनी फरमा देते हैं। अगर हुक्मरान इसे पढ़ने का मामूल बनाए तो बड़े बड़े सरकश व मुतकब्बिर लोग उनके मुती व फरमाबरदार बन जाए। या कुद्दूस नकाइस से पाक ज़ात। जो शख्स रोजाना ज़वाल के वक्त इस इस्म मुबारक को कसरत से पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला उसका दिल रूहानी अमराज से पाक रहेगा, यानी हसद, बुग़्ज़, कीना, हिर्स, खुदगर्जी और रियाकारी वगैरह से महफूज रहेगा। जो कोई 1000 बार इस इस्म को पढ़ेगा सबसे बेपरवाह होगा, यहां तक कि नाजायज शोहरत से भी। जो शख्स दुश्मन से बचने के लिए भागते वक्त इसको कसरत से पढ़ेगा वो महफूज रहेगा। जो सफर में इसकी मुदावमत करेगा कभी नहीं थकेगा। जो इसको 319 बार शीरनी पर पढ़कर दुश्मन को खिला दे तो दुश्मन मेहरबान हो जाएगा। जो ज़वाल के बाद 170 बार ये इसमें मुबारक पढ़े उसका दिल मुनव्वर होगा और रूहानी अमराज से पाक हो जाएगा। जो कोई 40 दिन तक खलवत में 1000 बार ये इसमें मुबारक पढ़ेगा उसका मकसद हासिल होगा और दुनिया में उसकी कुव्वत तासीर जाहिर हो जाएगी। अगर कोई इसको रात के आखिरी हिस्से में 1000 बार पढ़े तो बीमारी और बला उसके जिस्म से दूर हो जाती है। नमाज जुमा के बाद 150 बार सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह कहकर फिर इसको एक रोटी पर लिखकर जो शख्स खाए वो तमाम आफात से महफूज रहेगा और उसे इबादत की तौफीक होगी। जो जुमा की नमाज के बाद सुब्बूहुन कुद्दूसुन रोटी के टुकड़े लिखकर खाता रहे फरिश्ता सिफ्त हो जाएगा। या सलाम बेऐब ज़ात। जो शख्स कसरत से इस इस्म मुबारक को पढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह तमाम आफतों से महफूज रहेगा। अगर मरीज के पास उसके सरहाने बैठकर दोनों हाथ उठाकर इस इस्म मुबारक को 135 बार बुलंद आवाज से कि मरीज भी सुन ले पढ़े तो इंशाअल्लाह उसको शिफा नसीब होगी। जो हमेशा सुबह की नमाज के बाद 1000 बार इस इस्म को पढ़ेगा उसका इल्म ज्यादा होगा। अगर कोई इस इस्म को 141 बार पढ़कर बीमार पर दम करे तो बीमार सेहत पाएगा। जो इस इस्म को कसरत से पढ़े या लिख कर पास रखे दुश्मन से बेखौफ रहेगा। बीमार या खाए अगर 111 बार पढ़कर दम करे तो बीमारी और खौफ से महफूज रहेगा। ये इसमें मुबारक 690 बार शीरनी में पढ़कर दुश्मन को खिलाए तो दुश्मन मेहरबान हो जाए। अगर कोई 121 बार ये इस्म और सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम किसी मरीज पर पढ़े तो मरीज शिफा पाएगा। मर्ज अगर बहुत पुराना या शदीद हो तो मरीज खुद या कोई दूसरा शख्स 15 दिन तक 817 बार ये आयत उस पर पढ़कर दम करे। जो हर फर्ज नमाज के बाद 15 मरतबा अल्लाहुम्मा या सलाम वसल्लम पढ़ता रहे अल्लाह ताला उसे हर तरह की सलामती अता फरमाएगा। जिस मरीज के इलाज से डॉक्टर आजिज आ गए हों उसकी शिफायाबी के लिए इस किस्म का 1.25 लाख का खत्म निहायत मुजर्रब है। जिस शख्स को दुश्मनों से जान का खतरा हो वो घर से निकलते वक्त या हाफिज़ु या सलाम पढ़ता रहे
تو اللہ ताला उसे दुश्मन के शर से महफूज रखेंगे। या मुमिन, अमनो अमान देने वाला, जो शख्स किसी खौफ के वक्त 630 मरतबा इस इसमें मुबारक को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह हर तरह के खौफ और जानी और माली नुकसान से महफूज रहेगा। जो शख्स इस इसमें मुबारक को पढ़े या लिख कर पास रखे, उसका जाहिर बातिन अल्लाह ताला की अमान में रहेगा। जो कसरत से इसका व्रत करे, उसका ईमान कायम रहेगा और मखलूक उसकी मुद्दियों मुतगद हो जाएगी। जो कोई रोजाना 3 बार ये इसमें मुबारक पढ़ने का मामूल रखे, तो उसको कोई खौफ ना होगा। जो कोई 136 बार ये इसमें मुबारक पढ़े, जालिमों के जुल्म और जुमला आफत से महफूज रहेगा। खौफजदा आदमी अगर फर्जों के बाद 136 बार इस इस्म का विर्द रखे, तो उसके जानो माल महफूज रहेंगे। जिस पर खौफ तारी हो, वो या सलामो या मोमिन का विर्द रखे। खसूसन मुसाफिर अगर इसका विर्द रखे, तो अल्लाह ताला की तरफ से अमन सलामती नसीब होगी। जो शख्स किसी खौफ के वक्त 630 बार इस इस्म को पढ़ेगा, इंशाअल्लाहुल अजीज हर तरह के खौफ और नुकसान से महफूज रहेगा। जो इस इस्म को 115 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करेगा, इंशाअल्लाह ताला हर तरह के खौफ और नुकसान से महफूज रहेगा। या मुहैमिन, निगहबान, जो शख्स गुस्ल करके 2 रकअत नमाज पढ़ी और सिद्दे दिल से 100 मरतबा ये इसमें मुबारक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसका जाहिर बातिन पाक फरमा देंगे और इल्म हिम्मती पैदा होगी। जो शख्स 115 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ताला पोशीदा चीजों पर मुतला होगा, यानी उस पर पुरस्कार इलाही मुनकशिफ होने लगेंगे। जो कोई इसे 29 बार पढ़ेगा, उसको कोई गम न होगा। जो ये इस्म हमेशा पढ़ता रहेगा, तमाम बलाओं से महफूज रहेगा। या अजीज, सब पर गालिब, जो शख्स 40 दिन तक 40 मरतबा इस इस्म मुबारक को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको मुअज़्ज़िज़ व मुस्तग़नी बना देंगे। और जो शख्स नमाज फजर के बाद 41 मरतबा पढ़ेगा, वो इंशाअल्लाह किसी का मोहताज न होगा और जिल्लत के बाद इज्जत पाएगा। जिस शख्स की शादी न होती हो, वो 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 11 बार या अल्लाह या अजीजु या नासिरु या समदु पढ़कर शादी के लिए दुआ मांगे। फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर चेहरे पर हाथ फेर ले, तो उसकी जल्द शादी हो जाएगी। अगर लोग रात के आखिरी हिस्से में जमा होकर 2-2 हजार बार ये इसमें मुबारक पढ़े, तो रहमत की बारिश हो। जो या अजीजु मिन कुल्ले अजीज़ बिहक़्क़िन या अजीजु पढ़े, तमाम मखलूक में अजीज होगा। जो इस इस्म को 94 दिन तक 94 मरतबा रोजाना पढ़ दिया करे, वो मुअज़्ज़िज़ो कामरान रहेगा। जो इस इस्म को 411 दिन तक 200 बार अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ेगा, उसके सब काम दुरुस्त हो जाएंगे। जो 41 बार सुबह को हाकिम के पास जाने के वक्त या अजीजु पढ़ लिया करे, हाकिम मेहरबान रहेगा। जो इशा के बाद 200 बार या अजीजु पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी। जो किसी दुश्मन के लश्कर की तरफ हाथ का इशारा करके 70 बार ये इसमें मुबारक पढ़े, वो लश्कर अल्लाह ताला के हुक्म से शिकस्त खा जाएगा। या जब्बार, सबसे जबरदस्त, जो शख्स रोजाना सुबह शाम 206 मरतबा इस इसमें मुबारक को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ताला जालिमों के ज़ुल्म व कहर से महफूज रहेगा। और जो शख्स चांदी की अंगूठी पर ये इसमें मुबारक नक्श करवा कर पहनेगा, उसकी हैबत व शौकत लोगों के दिलों में इंशाअल्लाह पैदा होगी। अगर कोई इस इस्म को हमेशा पढ़ता रहे, वो मखलूक की ग़ीबत और बदगोई से महफूज रहता है और अल्लाह ताला उसकी हर जालिम व जाबिर से हिफाजत करता है। इस इस्म के साथ ज़ुल जलाल वल इकराम मिलाकर पढ़ना भी हिफाजत के लिए बहुत मुफीद है। या मुतकब्बिर, पढ़ाई और बुजुर्गी वाला, जो शख्स कसरत से इस इसमें मुबारक का विर्द रखेगा, अल्लाह ताला उसे इज्जत व बड़ाई अता फरमाएंगे। और अगर हर काम की इब्तिदा में ये इसमें मुबारक का कसरत पढ़े, तो इंशाअल्लाह उसमें कामयाब होगा। शबे ज़फ़ाफ में बीवी के पास जाकर क़ब्ल मुबाशरत 10 बार जिक्र करे, तो औलादे नरीना नेक वक्त हो। जो बगैर थके इसे कसरत से पढ़ता रहे, उसे बुलंद कदर मंजिलत नसीब होती है और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। किसी को बेहयाई से रोकने के लिए इसका 10 बार उस पर पढ़ना बहुत मुफीद है। जो इस इसमें मुबारक को हर काम के आगाज से पहले कसरत से पढ़ेगा, उसके काम में कोई रुकावट ना आएगी।
जो इसको 21 मरतबा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ख्वाब में कभी नहीं डरेगा। जो इसको 662 दिन तक 662 मरतबा रोजाना पढ़ेगा साहिब सूरत व सियासत होगा। जो दुश्मन से डरता हो इस इस्म की मुदावमत करे तो दुश्मन बदगोई से बाज आ जाएगा। या खालिक, पैदा करने वाला। जो शख्स 7 रोज तक मुतवातिर 100 मरतबा इस मुबारक को पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला तमाम आफतों से महफूज रहेगा। जो शख्स हमेशा ये इसमें मुबारक पढ़ता रहे तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता पैदा कर देते हैं जो उसकी तरफ से इबादत करता है और उसका चेहरा मुनव्वर रहता है। जिसका माल या बेटा गुम हो गया हो अगर वो 5000 बार इसका विर्द करे तो गुमशुदा वापस आ जाएगा। जो इसे 1000 बार पढ़ेगा उसे औलादे नरीना नसीब होगी। जो कोई लड़ाई में 300 बार इसको पढ़ेगा उसका दुश्मन मगलूब होगा। या बारी, जान डालने वाला। अगर बांझ औरत 7 रोजे रखे और पानी से इफ्तार करने के बाद 21 मरतबा अलबारी उल मुसव्विर पढ़े तो इंशाअल्लाह उसे हमल करार पाए और औलादे नरीना नसीब हो। तबीब इस इस्म को पाबंदी से हमेशा पढ़े तो उसके हाथ में शिफा होगी। जो कोई हफ्ते के दिन इसको 100 बार पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस की तरफ ले जाएगा। जो कोई इस इस्म को 244 बार पढ़े उसकी जो भी मुराद हो पूरी होगी। जो कोई इस इस्म पे मुदावमत करेगा हक ताला उसके लिए एक मुअन्निस पैदा करेगा। उसका बकसरत जिक्र करने से सनाए अजीबा का इजाद आसान हो जाता है। जो शख्स 7 दिन तक रोजाना इसको 100 बार पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे अमराज से शिफा और आफात से सलामती अता फरमाएगा। या मुसव्विर, सूरत देने वाला। इस इस्म मुबारक के खवास व बरकात भी वही है जो अलबारी के हैं। जिस औरत को हमल न ठहरता हो वो इस इस्म का कसरत से विर्द रखे तो हमल ठहर जाएगा। अगर कोई शख्स 7 दिन तक रोजे रखे और गुरूब आफ्ताब के बाद अफ्तार से पहले 21 बार ये इस्म मुबारक पढ़कर दम करे और पानी बांझ औरत को पिलाए तो इंशाअल्लाह उसका बांझपन दूर हो जाएगा। जो अपने बिस्तर पर आकर 7 बार ये इस्म पढ़े फिर हम बिस्तरी करें तो अल्लाह ताला उसे नेक औलाद अता फरमाएगा। इसका बकसरत जिक्र करने से सनाए अजीबा का इजाद आसान हो जाता है। जो इसका बकसरत विर्द करे उसके लिए मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। जो कोई वुजू करने के बाद शहादत की उंगली से ये इस्म अपनी पेशानी पर लिखे तो जिससे मुलाकात हो वो उसका दोस्त हो जाए। जो इसे पानी पर पढ़कर दम करे और पी ले तो आला मर्तबा पाए। बांझ औरत अगर अव्वल आखिर 11 बार सूरह हश्र की आखिरी आयत और दरमियान में या मुसव्विर 100 बार हर नमाज के बाद पढ़े तो उसका बांझपन खत्म हो और वो साहिब औलाद हो। या गफ्फार, दरगुजर और पर्दापोशी करने वाला। जो शख्स नमाज जुमा के बाद 100 मरतबा इस इस्म मुबारक को पढ़ेगा इंशाअल्लाह उस पर मग़फ़िरत के आसार ज़ाहिर होने लगेंगे और हर तंगी रफा होगी और बेशुमार रिज़्क़ हासिल होगा। जो शख्स नमाज असर के बाद रोजाना या गफ्फारू इग़फ़िरली पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह बख्शे हुए लोगों के ज़िम्रे में दाखिल करेंगे। जो कोई या गफ्फारू की मुदावमत करेगा उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे और उसके नफ्स की बुरी ख्वाहिशात दूर होंगी। जो या गफ्फारू इग़फ़िरली ज़ुनूबी जुम्मे की नमाज के बाद 100 बार पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको बख्श देगा और आखिरत में लुत्फ़ व मग़फ़िरत का हकदार ठहराएगा। जो इस इस्म को जुम्मे के बाद 100 बार पढ़ेगा तो मग़फ़िरत के आसार पैदा होंगे, तंगी दफा होगी और बेगुमान रिज़्क़ मिलेगा। गुस्सा करने वालों पर यह इस्म पढ़ा जाए तो उनका गुस्सा ज़ाया हो जाता है। या क़हार, सबको अपने काबू में रखने वाला। जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो वो कसरत से इस इस्म मुबारक को पढ़े तो इंशाअल्लाह दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से जाती रहेगी और खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। दुश्मनों पर फतह हासिल होगी। अगर चीनी के बर्तन पर लिखकर ऐसे शख्स को पिला दिया जाए जो बवजह सेहर के औरत पर कादिर न हो तो उसकी बरकत से सहर दफा हो। जिस शख्स की कोई हाजत हो वो अपने घर या मस्जिद में सर नंगा करके हाथ उठाकर 100 बार या कहारू कहे इंशाअल्लाह उसकी हाजत पूरी होगी। जो इशराक की नमाज के बाद सजदा करके 7 बार या कहारू पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे गनी फरमा देगा। जिस शख्स को दुश्मनों से खतरा हो वो सूरज निकलते वक्त और रात के आखिरी हिस्से में
दुश्मनों की हलाकत के लिए 100 बार ये पढ़े, या जब्बारो या क़हारो या ज़ल बत्श शदीद। फिर कहे खुज़ हक़्क़ी मिम्मन ज़लमनी वअदा। जो कोई किसी जालिम से डरता हो वो इस इस्म को फर्ज नमाज के बाद 306 बार पढ़ा करे। अल्लाह ताला उसे अमन व मान में रखेगा और दुश्मन पर गालिब होगा, हाकिम मेहरबान होगा और खौफ दिल से जाता रहेगा। जो किसी मुश्किल के वास्ते इस इस्म को 100 बार पढ़े, मुश्किल हल होगी। दुश्मन को मगलूब करने के लिए फजर की फर्ज और सुन्नत के दरमियान 100 बार इस इस्म का पढ़ना बहुत मुफीद है। या वहाब, सब कुछ अदा करने वाला। जो शख्स फिक्र फाका में गिरफ्तार हो वो कसरत से इस इस्म मुबारक को पढ़ा करे, या लिख कर अपने पास रखे, या चाश्त की नमाज के बाद आखिरी सजदे में 40 मरतबा ये इस्म मुबारक पढ़ा करे, तो इंशाअल्लाह फिक्र फाका से उसे हैरत अंगेज तौर पर निजात मिलेगी। और अगर कोई खास हाजत दरपेश हो तो घर या मस्जिद के सहन में 3 बार सजदा करके हाथ उठाए और 100 मरतबा ये इस्म मुबारक पढ़े, इंशाअल्लाह ताला हाजत पूरी हो जाएगी। जो 7 बार इस इस्म को रोज पढ़ेगा मुस्तजाबुद दावत होगा। जो इशा की नमाज के बाद 1414 मरतबा पढ़ेगा उसे रिज़्क़ की फरागी नसीब होगी। जो कोई फिक्र फाका से परेशान हो वो इस इस्म की कसरत करे, अल्लाह ताला उसे ऐसी राहत अता फरमाएगा कि हैरान रह जाएगा। जो चाश्त की नमाज के बाद सजदा की आयत पढ़कर सजदा में 7 बार अल वहाब पढ़ेगा, मखलूक से बेपरवाह हो जाएगा। जो कोई रिज़्क़ की फरागी चाहता हो चाश्त के वक्त 4 रकत नमाज पढ़े, फिर सलाम के बाद सजदे में जाकर अल वहाब 104 बार और अगर फुर्सत ना हो तो 50 बार पढ़े, मालदार हो जाएगा। जो इसे इशा के बाद 1150 बार पढ़े, मकरूज न रहेगा। हिफाजत ईमान के लिए हर नमाज के बाद 7 बार ये आयत पढ़ना मुजद्दिद है। बरकत के लिए या वहाबुल करीम ज़त्तौली पढ़ना मुफीद है। हर चीज में बरकत के लिए या वहाबुल काफी पढ़ना मुफीद है। या रज़्ज़ाक़, बहुत बड़ा रोजी देने वाला। जो शख्स नमाज सुबह से कबल अपने मकान के चारों कोनों में 10-10 मरतबा ये इस्म मुबारक पढ़कर दम करेगा, अल्लाह ताला उस पर रिज़्क़ के दरवाज़े इंशाअल्लाह खोल देंगे और बीमारी और मुफलिसी उसके घर में हरगिज़ न आएगी। ये अमल क़िबले की दाहिनी जानिब से शुरू किया जाए और मुंह क़िबले की तरफ ही रहे। जो इस इस्म को निहार मुंह 20 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए, अल्लाह ताला उसे ऐसा ज़हन अता फरमाता है जो बारीकियों और मुश्किलात को समझ लेता है। जो फजर के फर्ज सुन्नत के दरमियान 41 दिन तक 550 मरतबा ये इस्म रोजाना पढ़ेगा वो दौलतमंद होगा। इसमें फजर की नमाज जमात से पढ़ना और इसमें मुबारक के अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना शर्त है। जो इशा की नमाज के बाद सर नंगा करके या रज़्ज़ाक़ु तर्ज़ुक़ु मन तशाअ या रज़्ज़ाक़ु 11 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 41 रोज पढ़ेगा, उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। जो कोई इस इस्म को 545 बार रोजाना पढ़ेगा उसका रिज़्क़ कुशादा होगा और कोई दुश्वारी और दरमांदगी न आएगी। जो इस इस्म को रोजाना तन्हाई में 1000 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह खास रूहानी मुकाम पाएगा। जो हर नमाज के बाद इसके पढ़ने का मामूल बनाएगा, गैब से रोजी पाएगा। जो शख्स इस इस्म को 17 बार उस शख्स के सामने पढ़े जिससे कोई हाजत हो, इंशाअल्लाह वो हाजत पूरी हो जाएगी। जो इस इस्म को 100 बार कैदी की रिहाई के लिए पढ़ेगा, उसे खुलासी मिलेगी। और अगर बीमार की सेहत के लिए पढ़ेगा, उसे शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। या फत्ताह, बहुत बड़ा मुश्किल कुशा। जो शख्स नमाज फजर के बाद दोनों हाथ सीने पर रखकर 70 मरतबा ये इस्म मुबारक पढ़ा करेगा, इंशाअल्लाह उसका दिल नूरे ईमान से मुनव्वर हो जाएगा और कल्ब में तहारत पैदा होगी। जो कोई अपना हाथ सीने पर रखकर नमाज फजर के बाद 71 बार ये इस्म पढ़ेगा, उसका दिल पाक और मुनव्वर हो जाएगा और हक के रास्ते का हिजाब उससे उठा लिया जाएगा और उसे इंशाअल्लाह तमाम उमूर में आसानी और रिज़्क़ में बरकत अता की जाएगी। अगर कुन ज़हन चीनी की रकाबी पर इसको लिखकर जबान से चाटे तो सही हो जाएगा। जो इसे 7 बार पढ़ेगा, दिल की तारीकी जाती रहेगी। जो इसका बकसरत विर्द रखे, उसके दिल की कदूरत दूर हो जाएगी और फतुहात के दरवाजे उस पर खुल जाएंगे। या अलीम,
वसी इल्म वाला। जो शख्स कसरत से या अलीमों का विर्द करेगा, अल्लाह ताला उस पर इंशाअल्लाह इल्म मारिफत के दरवाजे खोल देंगे और उसका हाफजा कभी होगा। जो शख्स रब्बे ज़िदनी इल्मा की तिलावत करेगा, इंशाअल्लाह उसके इल्म में बेहद इजाफा होगा। जो कोई इस इस्म को दिल में पढ़े, साहिब मारिफत हो जाएगा, और अगर फर्ज नमाज के बाद 150 बार पढ़ेगा तो साहिब यकीन हो जाएगा। जो कोई नमाज के बाद 100 बार या आलिमुल गैब पढ़े, अल्लाह ताला उसको साहिब कश्फ बना देगा। जो इस्तिखारा करना चाहे, शबे जुमा को नमाज के बाद 100 बार मस्जिद में ये इस्म मुबारक पढ़कर सो रहे, मतलूबा हाल से आगाही पाएगा। जो कोई नामालूम अम्र दरियाफ्त करना चाहे, अव्वल 2 रकत नमाज पढ़े, फिर दुरूद शरीफ, फिर सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम 70 बार पढ़कर या अलीम अल्लमनी या खबीर अखबिरनी या मुबीन बय्यन ली 100 बार पढ़कर अपना मतलब तसव्वुर कर लेट जाए। अगर नींद ना आए तो उठकर किसी मजमे में चला जाए, वहां लोगों की बातों से बतरीक़े इशारा मालूम हो जाएगा। रोजी तंग करने वाला। जो शख्स रोटी के 4 लुकमों पर इस इस्म मुबारक को लेकर 40 दिन तक खाएगा, भूख, प्यास, जख्म और दर्द वगैरह की तकलीफ इंशाअल्लाह महसूस न होगी। जिस हामिला औरत को हमल गिरने का खतरा हो, वो कसरत से या काबिल पढ़े, हमल साकत नहीं होगा। जो इस इस्म को हर रोज 30 बार पढ़े, इंशाअल्लाह दुश्मन पर फतह होगी। जो कोई इस इस्म को आधी रात के वक्त पढ़ा करे, दुश्मन उसका मक़हूर होगा। बाज़ उलमा कहते हैं कि अल काबिदू को अल बासितू के साथ, अल मुज़िल्लु को अल मुइज़्ज़ु के साथ, अल मुमीतू को अल मुहय्यी के साथ, अल मुअख्खिर को अल मुक़द्दिम के साथ, अल मानिअ को अल मुहसी के साथ और अत-तार को अल नाफी के साथ मिलाकर जिक्र करना ज्यादा मुनासिब है। और इनमें हर पहले इस्म मसलन अल मुज़िल को दूसरे इस्म मसलन अल मुइज़्ज़ के साथ मिलाए बगैर पढ़ना मुनासिब नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। रोजी फराख करने वाला। जो शख्स नमाज चाश्त के बाद आसमान की जानिब हाथ उठाकर रोजाना 10 मरतबा इस इस्म मुबारक को पढ़ेगा और मुंह पर हाथ फेरेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे गनी बना देंगे और वो कभी किसी का मुहताज ना होगा। जो इसे 40 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह मखलूक से बेपरवाह होगा। मुश्किलात से निजात के लिए नमाज के बाद 140 बार हर रोज इसका पढ़ना मुफीद है। कशाइश के लिए 72 दिन तक रोजाना 12,000 बार ये इस्म पढ़े। जो कोई 3 रात में सवालात या बासितों खत्म करे और अव्वल व आखिर 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, उसे इंशाअल्लाह गैब से रोजी मिलेगी। 3 रातों के बाद रोजाना 100 बार पढ़ लिया करे। जो कोई सहर के वक्त आंखें बंद करके 11 मरतबा ये इस्म पढ़े और हाथ पर दम कर मुंह पर फेरे, फिर आंखें खोलकर हाथों की तरफ देखे, फिर 72 बार पढ़कर ये आयत तिलावत करे, इंशाअल्लाह उस दिन भूखा ना रहेगा। जो 72 बार रोजाना इस इस्म को पढ़ा करे, उसे हक ताला तमाम आफतों से महफूज रखता है। जो कोई इस इस्म को रात के आखिरी हिस्से में हाथ उठाकर 10 बार कहे, हमेशा खुश दिल रहे और गमो अलम ना हो और ऐसी जगह से नफा हो जहां से उम्मीद ना हो। पस्त कर देने वाला। जो शख्स रोजाना 500 मरतबा या खाफिद पढ़ा करेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजतें पूरी और मुश्किलात दूर फरमा देंगे। जो शख्स 3 दिन तक मुसलसल रोजे रखे और चौथे रोज एक ही मजलिस में बैठकर 70 बार या हाफिद पढ़े, इंशाअल्लाह दुश्मन पर फतह याब होगा। जो उसे 1000 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह तमाम दुश्मनों से महफूज रहेगा। जो कोई इस इस्म को बहुत पढ़े, हाकिम वक्त उससे रजामंद रहे। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो हर नमाज के बाद 1481 बार इसका पढ़ना बहुत मुफीद है। जो कोई जालिम से डरता हो, इस इस्म को 70 बार पढ़ा करे, उसकी जुल्म से बचा रहेगा। बुलंद कर देने वाला। जो शख्स हर महीने की 14वीं रात को आधी रात के वक्त 100 मरतबा या राफ़िउ पढ़े, तो अल्लाह पाक उसे इंशाअल्लाह मखलूक से बेनियाज कर देंगे और तो और नगरी अता फरमाएंगे। जो कोई पीर के दिन या जुमे की रात मगरिब या इशा के बाद 440 मरतबा इस इस्म का विर्द करेगा, उसे मखलूक के दरमियान एक रूह नसीब होगा। जो कोई इसे आधी रात या दोपहर को 100 बार पढ़ेगा, तो हक ताला जल्ल शानो उसको बरगुज़ीदा करेगा और वो तवंगर और बेनियाज होगा। जो कोई इस इस्म को हर रोज 20 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह मुराद पाएगा।
जो कोई इसे 351 बार पढ़ेगा मखलूक के दरमियान अजीज होगा। जो इसे 70 बार पढ़ेगा जालिमों से अमन में रहेगा और इंशाअल्लाह सरकशों से महफूज रहेगा। या मुइज़, इज्जत देने वाला। जो शख्स पीर या जुमा के दिन बाद नमाज मगरिब 60 मरतबा या मुइज़्ज़ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह लोगों में बाइज्जत और बावकार बना देंगे और उसकी हैबत लोगों के दिलों में पैदा होगी। जो शख्स बाद नमाज ईशा पीर या जुमा की रात में 140 बार पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी हैबत और हुर्मत मखलूक के दिल में डाल देगा और वो अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरेगा और उसी की पनाह में रहेगा। जो 140 दिन तक 41 बार हर रोज बिना नागा उसको पढ़ेगा, दुनिया व आखिरत में इज्जत पाएगा। पढ़ने का आगाज पीर या जुमे की शब करे। या मुज़िल, जिल्लत देने वाला। जो शख्स 75 मरतबा या मुज़िल्लु पढ़कर सर्वसजुदू होकर दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह हासिदों, जालिमों और दुश्मनों के शर से महफूज रखेंगे। अगर कोई खास दुश्मन हो तो सजदे में उसका नाम लेकर कहे, ऐ अल्लाह पुनः जालिम या दुश्मन के शर से महफूज रखकर दुआ करे तो इंशाअल्लाह कबूल होगी। जो 770 बार रोजाना कोई वक्त मुकर्रर करके या मुज़िल्लु कुल्ली जब्बारिन अनीदिन बिक़हरि अज़ीज़िन सुल्तानिक पढ़ लिया करे तो उसका दुश्मन दफा होगा। जिसका कोई हक किसी के ज़िम्मे हो और अदा करने से टाल मटोल कर रहा हो तो इस इस्म को बकसरत पढ़ने से वो उसका हक इंशाअल्लाह अदा करेगा। या समीउ, सब कुछ सुनने वाला। जो शख्स जुमरात के दिन चाश्त की नमाज के बाद 500 या 150 मरतबा या समी पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसकी दुआएं कबूल होगी। दरमियान में किसी से बात हरगिज़ ना करे। और जो शख्स जुमा के दिन फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको इंशाअल्लाह नजर खास से नवाजेंगे। जो इसे कसरत से पढ़े कम सुनने के मर्ज से इंशाअल्लाह शिफा पाएगा। अगर कोई जुमरात के दिन चाश्त की नमाज के बाद 500 बार इस इस्म को पढ़ेगा और एक कौल के मुताबिक हर रोज 100 बार पढ़े और पढ़ते वक्त बातचीत नहीं करेगा और पढ़कर दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह शिफा पाएगा। या बसीर, सब कुछ देखने वाला। जो शख्स नमाज जुमा के बाद 100 मरतबा या बसीर पढ़ा करेगा, अल्लाह ताला उसकी निगाह में इंशाअल्लाह रोशनी और दिल में नूर पैदा फरमा देंगे। जो शख्स जुमरात के रोज नमाज फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान इस इस्म मुबारक को 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके दिल को हिदायत से मुनव्वर फरमाएंगे। जो कोई जुमा के दिन फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान 100 बार ये इस्म मुबारक पढ़ेगा, उसे अल्लाह ताला खुसूसी नजर इनायत फरमाएगा। जो इसका बकसरत विर्द करेगा, आंखों के अमराज से महफूज रहेगा। उसके लिए ये दुआ भी मुफीद है। अल्लाहुम्मा या समीउ या बसीरु मत्तअनी बिस्समइ व बसरी वजअलहु बल वारिस मिन्नी। जो कोई इस इस्म को हर रोज असर के वक्त 7 बार पढ़ लिया करे, नागहानी मौत से अमन में रहेगा। जो इस इस्म को जुमे के खुतबे से पहले 100 बार पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह मंजूर नजर इलाही होगा। या हकम, हाकिम मुतलिक। जो शख्स अखीर शब में 99 मरतबा बावजूद ये इस्म मुबारक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को इंशाअल्लाह ताला महले असरार व अनवर बना देंगे। और जो शख्स जुमे की रात में ये इस्म मुबारक इस कदर पढ़े कि बेहालो बेखुद हो जाए, तो अल्लाह ताला उसके कल्ब को कश्फ व इल्हाम से नवाजेंगे। जो कोई शब जुमा में आधी रात को ये इस्म पढ़ेगा, हक ताला उसका बातिन पाक साफ कर देंगे। जो 5 वक्त हर नमाज के बाद 80 बार इस इस्म को पढ़ लिया करे, किसी का मुहताज न होगा। या अदल, सरापा इंसाफ। जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात में रोटी के 20 टुकड़ों पर अल अदलु लिखकर खाएगा, अल्लाह ताला मखलूक को उसके लिए मुसख्खर फरमा देंगे। जो कोई इस इस्म को हर नमाज के बाद 104 बार पढ़े, गैब से रोजी पाए और उसे नेक अमल की तौफीक नसीब हो। जो कोई मगरिब की नमाज के बाद 1000 बार इस इस्म मुबारक को पढ़ेगा, आसमानी बलाओं से निजात पाएगा। जो 5 वक्त हर नमाज के बाद 80 बार इस इस्म को पढ़ लिया करेगा, वो किसी का मुहताज ना होगा। या लतीफ, बड़ा लुत्फो करम करने वाला। जो शख्स 169 मरतबा या लतीफो पढ़ा करे, उसके रिज़्क़ में इंशाअल्लाह बरकत होगी और उसके सब काम बखूबी पूरे होंगे।
जो शख्स फिक्र वाक़ा, दुख, बीमारी, तन्हाई, कसम पुरसी या किसी और मुसीबत में गिरफ्तार हो, वो अच्छी तरह वुजू करके दो गाना पढ़े और अपने मकसद और मतलब को दिल में रखकर 100 मरतबा ये इसमें मुबारक पढ़े। मकसद यकीनन पूरा होगा। जो इस इसम को रोजाना 173 मरतबा पढ़े, उसको असबाब मईशत नसीब होंगे और हाजत पूरी होगी। बेटियों के रिश्ते और नसीब खुलने और अमराज से सेहत के लिए हर रोज तहतर वुजू नमाज के बाद 100 बार इसका पढ़ना मुफीद है। या खबीर, बाखबर और आगाह। जो शख्स 7 रोज तक इसमें मुबारक बकसरत पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ताला उस पर पोशीदा राज जाहिर होने लगेंगे। जो शख्स ख्वाहिश नफ्सानी में या किसी मूजी के पंजे में गिरफ्तार हो, वो बकसरत इसमें मुबारक का विर्द करे, इंशाअल्लाह उनसे रिहाई नसीब होगी। जो 7 दिन मुतवातिर इसका विर्द करे, उसे अल्लाह की तरफ से रूहानियत नसीब होती है, जो मतलूबा उमूर में उसकी रहनुमाई करती है। जो नफ्से अम्मारा के हाथों गिरफ्तार हो, कसरत से इसका विर्द करे, इंशाअल्लाह निजात पाएगा। इस्तिखारे के वास्ते 41 दिन तक रोजाना 300 बार या खबीर व खबरनी पढ़े। फिर इस्तिखारे के लिए अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 100 बार और या खबीर व खबरनी 1100 बार पढ़े, तो खैर और शर की वाज़ेह तस्वीर सामने आ जाएगी। या हलीम, बड़ा बुर्दबार। जो शख्स इस इसमें मुबारक को कागज पर लिखकर पानी से धोकर जिस चीज पर इस पानी को छिड़के या मरेगा, इंशाअल्लाह उसमें खैर और बरकत होगी। अगर औजारों पर छिड़के तो उसकी सनत और खुरफत में बरकत हो। अगर किश्ती पर छिड़के तो गर्क होने से महफूज रहे। जानवर, गाड़ी या मशीनरी पर छिड़का जाए तो तमाम आफतों से वो महफूज रहे। अगर कोई अमीर आदमी इसकी बकसरत तिलावत करे तो उसका इज्जत व वक़ार बरकरार रहे। जो उसका हर वक्त विर्द रखेगा, इंशाअल्लाह फतहमंद रहेगा और हर आफत से बचा रहेगा। जो कोई इस इस्म को रोज ज़ोहर की नमाज के बाद 9 दफा पढ़ा करेगा, इंशाअल्लाह तमाम खलकत में सुरखरू रहेगा। जो दुश्मन या मुद्दई या हाकिम के सामने होते ही पानी से हाथ भिगोकर 11 दफा ये इस्म पढ़कर मुंह पर मल लिया करे, इंशाअल्लाह दुश्मन सख्ती न कर सकेगा और हाकिम नरमी और मेहरबानी से पेश आएगा। जो कोई इसको कागज पर लिखाकर फिर उसको धोए और पानी अपनी खेती पर छिड़क दे, तो इंशाअल्लाह ज़राअत की हर आफत से हिफाजत रहेगी और कमाल को पहुंचेगी और उसमें बरकत होगी। जो कोई इस इस्म को बादशाह के रूबरू पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसके गुस्से से महफूज रहेगा। जो कोई दरख्त बोते वक्त 28 बार ये इसमें मुबारक पढ़े, तो दरख्त सरसब्ज और खिजा से महफूज रहेगा। अगर रईस आदमी इसको बकसरत पढ़े तो उसकी सरदारी खूब जमे और राहत से रहे। या अज़ीम, बड़ा बुजुर्ग। जो शख्स इस इसमें मुबारक का बकसरत विर्द रखेगा, इंशाअल्लाह उसे इज्जत व असमत नसीब होगी और वो हर मर्ज से महफूज रहेगा। इस इसमें मुबारक के 12 मरतबा पढ़ने से हर आफत से अमन हासिल होगा। जो कोई हुक्मरान से खौफजदा हो, वो 12 मरतबा इस इसमें मुबारक को पढ़कर अपने ऊपर दम करे, इंशाअल्लाह महफूज रहेगा और नरमी पाएगा। जो इस इसमें मुबारक को 7 दफा पानी पर पढ़कर दम करके पानी पी ले, तो इंशाअल्लाह उसके पेट में दर्द न होगा। या गफूर, बहुत बख्शने वाले। जो शख्स इस इसमें मुबारक का बकसरत विर्द रखेगा, इंशाअल्लाह उसकी तकलीफें और रंज गम दूर हो जाएंगे और मालो औलाद में बरकत होगी। हदीस शरीफ में आया है कि जो सजदे में या रब्बि इग़फिरली 3 मरतबा कहेगा, तो अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ फरमा देंगे, फर्ज नमाज के सजदे के अलावा। इसके अलावा इस इस्म मुबारक को 3 बार लिखकर बुखार वाले को बांध दिया जाए तो बुखार जाता रहे, इंशाअल्लाह। इसके साथ 3 दूसरे इस्माए हुस्ना मिलाकर 11 बार या सुब्बूहु या कुद्दूसु या गफूरु या वदूदु पढ़कर दुश्मन के चेहरे पर तसव्वुर में फूंक मार दे, दुश्मन की जुबान बंद हो जाएगी और वो उसके खिलाफ नहीं बोल सकेगा। जो इस इस्म को बकसरत पढ़ेगा, उसके दिल से इंशाअल्लाह सियाही घटेगी। जो इसे बकसरत पढ़ेगा, बुरे इखलाक और रूहानी अमराज और ज़ाहिरी बीमारियों से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा और उसकी मालो औलाद में बरकत होगी। या शकूर, कदरदान। जो शख्स माशी तंगी या किसी और दुख दर्द में मुब्तला हो, वो इस इसमें मुबारक को 21 मरतबा रोजाना पढ़े, इंशाअल्लाह उससे रिहाई नसीब होगी। अगर तकान या गिरानी आजा हो तो इस इसमें मुबारक को लिखकर बदन पर फेर दे और पिए तो आराम हो। और अगर ज़ईफ़ुल बसर अपनी आंख पर फेरे
तो निगाह में तरक्की हो। जो कोई ये 41 बार पानी पर दब करके पानी अपनी आंखों पर छिड़के तो उसकी नजर तेज हो जाएगी। जिसको ज़ेक़ुल नफ्स, दमा या थकान या अगर इन्नी आजा हो तो इसको लिखकर बदन पर फेर पड़ेगा। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन बुलंद मर्तबा पाएगा। या अली। बहुत बुलंद बरतर। जो शख्स इस इस्म मुबारक को हमेशा पढ़ता रहे और लेकर अपने पास रखे, उसे रुतबे की बुलंदी, खुशहाली और मकसद में कामयाबी नसीब होगी। अगर इस इस्म मुबारक को लिखकर बच्चे के बांध दिया जाए तो जल्द जवान हो। अगर मुसाफिर अपने पास रखे तो जल्द अपने अजीजों से मिले। अगर मुहताज अपने पास रखे तो गनी हो जाए। जो इस इस्म को वरम यानी सूजन पर 3 बार पढ़कर फूकेगा, इंशाअल्लाह सेहत पाएगा। अगर फकीर इसे 110 बार पढ़े तो गनी हो जाए और दुनिया में इज्जत पाए। ये इस्म मशाइख, बुजुर्गों, तलबा और सालिकीन के लिए एक रूहानी खजाना है। अगर इसके साथ अल्लाह ताला का नाम भी मिला लिया जाए तो ये बड़े अस्कार में शुमार होता है। बाज़ मशाइख के नजदीक या अली, या अजीम, या हलीम, या अलीम का मजमुआ इसमें आज़म है। वल्लाहु आलम। या कबीर। बहुत बड़ा। जो शख्स अपने ओहदे से माजूल हो गया हो वो 7 रोजे रखे और रोजाना 1000 मरतबा या कबीर पढ़े, वो इंशाअल्लाह अपने ओहदे पर बहाल हो जाएगा और बुजुर्गियों बरतरी नसीब होगी। जो शख्स इस इस्म मुबारक की कसरत करेगा उस पर उलूम व मारिफत के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर किसी खाने की चीज पर पढ़कर दम करके मियां बीवी को खिला दिया जाए तो बाहम उल्फत पैदा हो। इसका बकसरत जिक्र करने से इल्म व मारिफत का दरवाजा खुलता है। जो कोई इस इस्म को पढ़े मखलूक की नजरों में मुमताज हो और बुलंद मर्तबा हो। ये बादशाहों और हुक्काम का वजीफा है। वो अगर इसका एहतमाम करें तो उनका रूब रहे और मुहिम्मात बखूबी सरअंजाम पाए। जो इसे 9 दफा किसी बीमार पर पढ़कर दम कर दे, इंशाअल्लाह बीमार तंदुरुस्त हो। जो इसे 100 बार पढ़ेगा मखलूक में अजीज रहेगा। या हाफिज। सबका मुहाफिज। जो शख्स बकसरत या हफीजू का विद रखेगा और लिखकर अपने पास रखेगा, वो इंशाअल्लाह हर तरह के खौफ व खतरा और नुकसान ज़रर से महफूज रहेगा, चाहे वो दरिंदों के दरमियान ही क्यों न सोता हो। ये इसमें मुबारक खौफनाक सफर में हिफाजत के लिए बेहद मुफीद और सरीउल असर है। हत्ता कि अगर इसे पढ़कर दरिंदों के दरमियान सो जाए तो इंशाअल्लाह वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इस इस्म के जिक्र के बाद 3 बार ये दुआ पढ़े, या हफीजु इहफिज़नी। जो इस इस्म को हर रोज 16 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह हर तरह से निडर रहेगा। जो मगरिब के बाद 41 बार क़िबले की तरफ चेहरा करके या हफीजु, या हफीजु, या रक़ीबु, या मुजीबु, या अल्लाह पढ़ेगा, इंशाअल्लाह गैब से रोजी पाएगा। जो ये इसमें मुबारक किसी बीमार पर 40 हफ्ते तक 70 बार रोजाना पढ़कर दम करेगा, इंशाअल्लाह तंदुरुस्त हो जाएगा। इसको पढ़ने और लिखकर अपने पास रखने वाला डूबने और जलने, देव, परी और नजर बद से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। जिस शख्स पर आसिब मुसल्लत हो या जिसे दुश्मन से जान का खतरा हो, वो कसरत से या हाफिजु, या हफीजु, या रक़ीबु, या वकीलु, या सलामु, या अल्लाह पढ़े, हर खतरे से महफूज रहेगा। या मुक़ीत। सबको रोजी और तवानाई देने वाला। जो शख्स खाली आभोरे में 7 मरतबा ये इसमें मुबारक पढ़कर दम करेगा और उसमें खुद पानी पिए या किसी दूसरे को पिलाए या सूंघेगा, तो इंशाअल्लाह मकसद हल हो जाएगा। अगर रोजेदार इसे मिट्टी पर पढ़कर या लिखकर इसको तर करके सूंघे तो कुव्वत और ग़िज़ायत हासिल हो। अगर मुसाफिर कोज़ा पर 7 बार पढ़कर इससे पानी पिया करे तो वहशत सफर से मामून हो। जिसकी आंख सुर्ख हो और दर्द करती हो, वो इस इस्म को 10 बार पढ़कर दम कर दे। जो किसी को गरीब देखे या खुद उसको गरीबी आए या कोई लड़का बदखोई करे या बहुत रोए, 7 बार खाली आभोरे पर यह इसमें मुबारक पढ़कर और उसमें पानी डालकर खुद पिए और दूसरों को पिलाए, इंशाअल्लाह फायदा होगा। अगर रोजेदार को हलाकत का खौफ हो तो 100 बार फूल पर पढ़कर इसे सूंघने से इंशाअल्लाह कुव्वत पाएगा और हर रोजा रख सकेगा। जो इसे इस्म अल-कायम के साथ मिलाकर हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ेगा, 100 दायमी अमराज से इंशाअल्लाह शिफा पाएगा। जो इस इस्म को हर रोज 7 बार पानी पर दम करके पिएगा, इंशाअल्लाह गैब से रोजी पाएगा, कभी भूखा ना रहेगा। या
حسيب सबके लिए किफायत करने वाला। जिस शख्स को किसी भी शख्स या चीज का डर हो, वो जुमेरात से शुरू करके 8 रोज तक सुबह शाम 70 मरतबा हस्बी अल्लाहु हसीब पढ़े, वो इंशाअल्लाह हर चीज के शर से महफूज रहेगा। जिसे कोई गम या मुसीबत वाक़े हो, वो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की कसरत करे, अल्लाह ताला उसकी तमाम दुनियावी व उखरवी परेशानियां दूर फरमाएंगे। इस आयत का रोजाना 450 बार विर्द करना हर तरह की आफात, खतरात और मुसीबतों से निजात और तहफ्फुज के लिए अक्सीर है। जो कोई इस इस्म को 70 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह दुश्मन की शर से महफूज रहेगा। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो एक हफ्ते तक रोजाना सुबह शाम 145 बार ये इस्म मुबारक पढ़े, इंशाअल्लाह मुश्किल आसान हो जाएगी। अगर किसी से हिसाब में तशद्दुद का अंदेशा हो या किसी भाई बरादरी से किसी मामले में खौफ हो, तो 7 रोज तक तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से पहले 20 बार ये इस्म मुबारक पढ़ लिया करे। अल हसीबों में इस्म आज़म की तरफ इशारा है। वल्लाहु अअलम। या जलील बड़े और बुलंद मर्तबे वाला। जो शख्स मुश्को ज़ाफ़रान से इस इस्म मुबारक को लिखकर अपने पास रखेगा और बकसरत या जलीलों का विर्द रखेगा, इंशाअल्लाह उसको इज्जत व अज़मत और कद्र व मंजिलत हासिल होगी। जो कोई इस इस्म को 73 बार पढ़ा करे, इंशाअल्लाह साहिब वक़ार हो। जो कोई इसको 10 बार अपने असबाब पर पढ़े, चोरी से महफूज व सलामत रहे। या करीम बहुत करम करने वाला। जो शख्स रोजाना सोते वक्त या करीम पढ़ते पढ़ते सो जाया करे, तो अल्लाह ताला उसको उलमा सुलहा में इज्जत नसीब फरमाएंगे और गैब से रोजी अता फरमाएंगे। जो शख्स या करीमुल वहाब ज़त्तौली रोजाना 100 बार पढ़े, उसके असबाब व अहवाल में बरकत ज़ाहिर होगी। या रक़ीब बड़ा निगहबान। जो शख्स अपने अहले वयालो मालो मिनाल पर 7 मरतबा इस इस्म मुबारक को पढ़कर रोजाना दम किया करे और या रकीबों का विर्द रखे, इंशाअल्लाह वो तमाम आफात से महफूज रहेगा। अगर हमल के जाया होने का खतरा हो तो औरत अपने पीठ पर हाथ रखकर 7 बार इस इस्म मुबारक को पढ़े, इंशाअल्लाह बच्चा जाया होने से महफूज रहेगा। अगर सफर में किसी बाल बच्चे की तरफ से फिक्र हो तो उसकी गर्दन पर हाथ रखकर इस इस्म मुबारक को 7 मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह वो बच्चा सफर में महफूज रहेगा। जो कोई फोड़ी और पिंसी पर 3 बार ये इस्म मुबारक पढ़कर फूंक दे, इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी। जो कोई अपना मालो असबाब, गाड़ी वगैरह कहीं छोड़ते वक्त इस इस्म को पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह चोरी से हिफाजत रहेगी। ये मुजर्रिब है। या मुजीब दुआएं सुनने और कबूल करने वाला। जो शख्स कसरत से या मुजीब को पढ़ा करे, इंशाअल्लाह उसकी दुआएं बारगाह खुदाबंदी में कबूल होने लगेंगी। नीज दुआ के साथ जिक्र करना मुअज्जिब कबूलियत दुआ है। जो इस इस्म मुबारक को अपने पास लिखकर रखेगा, अल्लाह ताला की अमा में रहेगा। जो कोई दर्द सर के लिए 3 बार ये इस्म मुबारक पढ़कर दम करेगा, इंशाअल्लाह दर्द सर दूर होगा। जो इस इस्म को तुलूए आफ्ताब के वक्त 55 बार पढ़ने का मामूल बनाएगा, इंशाअल्लाह मुस्तजाब दावत होगा। या वासिअ वुसअत वाला। जो शख्स बकसरत या वासियों का जिक्र करेगा, इंशाअल्लाह उसको ज़ाहिरी और बातिनी गिना अल्लाह ताला अता फरमाएंगे और उसमें बुलंद हौसले की वो बुर्दबारी पैदा होगी। जो इसका कसरत से जिक्र करेगा, ज़ाहिरी और बातिनी गिना नसीब होगा। नीज उसे इज्जत, हौसला और बुर्दबारी, वुसअत क़ल्बी और दिल की सफाई नसीब होगी और अल्लाह ताला मुआमलात में कुशादगी के लिए अता फरमाएंगे। जो कोई इस इस्म को पढ़ता रहे, उस पर मलाइका नाजिल होते हैं। जो इस इस्म को पढ़ने का मामूल बना ले, उसे इंशाअल्लाह रोजी मिलेगी और मुफलिस नहीं होगा। जिसको बिच्छू काट ले, वो ये इस्म मुबारक 70 बार पढ़कर दम कर दे, इंशाअल्लाह जहर असर न करेगा। जो कशाइश कुशादगी के वास्ते इसका जितना विर्द बढ़ाएगा, उतना मालदार हो जाएगा। जिस लड़की का रिश्ता ना आता हो, वो 90 दिन तक सोने से पहले
الواسع جل جلالہ کا 101 بار ورد کرے، انشاءاللہ اس دوران رشتہ آ جائے گا۔ یا حکیم، بڑی حکمتوں والا، جو شخص کثرت سے یا حکیم پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیں گے۔ جس کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو وہ پابندی سے اس اسم مبارک کو پڑھے، انشاءاللہ کام پورا ہو جائے گا۔ جو ظہر کے بعد 90 بار اس اسم کو پڑھے گا تمام مخلوق میں سرخرو رہے گا۔ جو اس کو 72 بار پڑھا کرے انشاءاللہ اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے اور سب حاجتیں بر آئیں۔ جو کوئی اس کا بکثرت ورد رکھے گا علم و حکمت کے چشمے اس کی زبان سے پھوٹیں گے اور وہ لطیف اشارات اور معائنے کے اسرار کو بھی سمجھ لے گا۔ یا ودود، بڑا محبت کرنے والا، جو شخص 1000 مرتبہ یا ودود پڑھ کر کھانے پر دم کرے گا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو شخص اس اسم مبارک کا 1000 بار ذکر کرے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا۔ زوجین کی محبت کے لیے اول آخر 2 بار درود شریف اور یا ودود 2000 بار چینی پر، یا اول و آخر 2 بار درود شریف اور یا ودود 1000 بار نمک پر پڑھ کر مطلوب کا نام لے کر دم کرے اور مطلوب کو کھلائے، باہم محبت میں اضافہ ہوگا۔ جس کا بیٹا برائیوں میں مبتلا ہو وہ جمعہ کے بعد 1000 بار یہ اسم مبارک معطر و لطیف شیرنی پر پڑھ کر دم کر دے اور 2 رکعت نماز ادا کرے اور وہ شیرنی اس کو کھلائے، انشاءاللہ صالح ہو جائے گا۔ اس کا ورد تصغیر کے لیے مفید ہے۔ جو شخص کسی پریشانی میں پڑ جائے یا دشمنوں یا ڈاکوؤں کے نرقے میں آ جائے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر 33 بار یا ودود پڑھے، پھر دعا کرے، انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ یا مجید، بڑا بزرگ، جو شخص کسی موذی مرض، آتشک، جذام یا برس وغیرہ میں گرفتار ہو وہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے اور افطار کے بعد اس اسم مبارک کو پڑھا کرے اور پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ وہ مرض دور ہو جائے گا، چاہے اس کا ازالہ بلا سبب ہو یا اسباب دنویہ یعنی علاج وغیرہ کے ساتھ ہو۔ 20 دن تک روزہ رکھ کر افطار کے وقت 57 بار اس اسم کو پڑھنا موذی امراض کے لیے مفید ہے۔ جس کی اپنے ساتھیوں میں عزت و حرمت نہ ہو وہ ہر صبح کو 99 بار یہ اسم پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے، انشاءاللہ عزت و حرمت حاصل ہوگی۔ جو گرمیوں میں اس اسم مبارک کو پڑھے گا تشنگی سے معمول رہے گا۔ جو اس اسم پر مداومت کرے گا معاشرے میں عزت پائے گا۔ یا باعث، مردوں کو زندہ کرنے والا، جو شخص روزانہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 101 مرتبہ یا باعث پڑھا کرے انشاءاللہ اس کا دل علم و حکمت سے زندہ ہو جائے گا۔ جو اس اسم کو 100 بار ہر روز پڑھنے کا معمول بنائے گا اس سے انشاءاللہ نیکیاں سرزد ہوں گی اور برائیوں سے بچا رہے گا۔ جو کوئی اس اسم کو 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے اور حاکم کے روبرو ہو جائے تو حاکم مہربان ہو جائے گا۔ جو کوئی اس کا بکثرت ورد رکھے گا خوف الہی اس پر غالب رہے گا۔